નમસ્કાર, આપની કંપનીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લા અને આજે કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ તે પહેલાં જોઈએ મુખ્ય સમાચાર. ટ્રમ્પ ટેરિફના નવા સ્ટ્રક્ચર અને જીનીવામાં ઈરાન અને અમેરિકાની બેઠક પહેલાં બજારમાં તેજી. નિફ્ટી 90 પોઈન્ટ્સ જેટલી મજબૂતી સાથે 25,600 પાર. બેંક નિફ્ટીમાં પણ મામૂલી દરમાં સ્મોલ કેપ શેર્સ કરી રહ્યા છે આજે આઉટ પરફોર્મ, પરંતુ મિડ કેપમાં દબાણ. યુપીએલની રિસ્ટ્રક્ચરિંગથી બજાર નાખુશ. શેર 13% ઘટીને વાયદાના ટોપ યુઝર્સમાં સામેલ. કંપની એગ્રી અને ક્રોપ પ્રોટેક્શન બિઝનેસને કરશે અલગ. તો પીએસયુ બેંકમાં લગભગ 2%ની મજબૂતી. ઇન્ડિયન અને યુનિયન બેંકમાં શાનદાર તેજી. ત્યાં જ એક્સિસ બેંક 2%ની તેજી સાથે નિફ્ટીના ટોપ ગેનર્સમાં સામેલ. એનબીએફસી અને ઓટો શેર્સમાં પણ ખરીદારી. બંને ઇન્ડેક્સ લગભગ 1% ઉપર. કેપિટલ માર્કેટ અને મેટલ શેર્સમાં પણ ખરીદારી, પરંતુ આઈટી અને કેમિકલ શેર્સ પર દબાણ. અને 590 કરોડના ફ્રોડના સમાચારથી આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંકમાં લાગી 20%ની લોઅર સર્કિટ. હરિયાણા સરકારના વિભાગોને ખાતામાં અંતર મળવાથી બેંકોની ચંદીગઢ શાખામાં અનિયમિતતાનો મુદ્દો આવ્યો સામે. કંપનીએ કોન્કોલમાં કહ્યું, કોઈ પણ પરિણામ આવે તેને બચાવવા માટે સક્ષમ. ગુડ આફ્ટરનૂન. માર્કેટની અપડેટ અત્યારે અને 25,645. નિફ્ટી માટે જોઈ રહ્યા છીએ લગભગ અત્યારે 70-75 અંકની મજબૂતી છે. બેંક નિફ્ટી જોઈએ તો અત્યારે 61,070ના લેવલ્સ પર ત્યાં ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ કારોબાર થઈ રહ્યો છે. સેન્સેક્સ પણ 5% ઉપર છે. નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ અત્યારે સેન્સેક્સ 83,100 આસપાસના લેવલ્સ બતાવી રહ્યું છે 350 અંકની મજબૂતી સાથે. બ્રોડર માર્કેટ જોઈએ તો આજે મિડ કેપમાં વેચવાલી છે, જે રીતે આપણે હેડલાઇન્સ જોયું, પરંતુ સ્મોલ કેપનું એક આઉટ પરફોર્મન્સ છે. નિફ્ટી મિડ કેપ 59,122ના લેવલ્સ 400 અંકના ઘટાડા સાથે બતાવી રહ્યું છે. તો સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 17,038ના લેવલ્સ 5%ની ખરીદારી સાથે. બ્રેથ નેગેટિવ સાઇડ પર છે, જે એડવાન્સ તરફ 1,362 સ્ટોક્સ અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. તો સામે 1,543 કાઉન્ટર્સ છે, જે ઘટીને કારોબાર કરતા આપણને બતાવી રહ્યા છે. ઓવરઓલ એક સેટઅપ માર્કેટ માટે આજે એક બનતું જોઈ રહ્યા છીએ, જ્યાં નિફ્ટીમાં ખરીદારી, બેંક નિફ્ટીમાં થોડું પ્રેશર આવતું જોઈ રહ્યા છે. આગળ વધીએ, આપની કંપનીમાં ચર્ચા કરીએ ગલ્ફ ઓઇલના મેનેજમેન્ટ સાથે. અને અત્યારે ચર્ચા કરવા જોડાઈ રહ્યા છે ગલ્ફ ઓઇલ લુબ્રિકન્ટ્સના હોલ ટાइम डायरेक्टर અને सीएफओ मनीष अग्रवाल. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर आपका. सबसे पहले मनीष सर एक शुरुआत करना चाहेंगे, ओवरऑल एक परफॉर्मेंस और आउटलुक गोइंग अहेड कैसे देख रहे हैं उसके साथ शुरुआत करेंगे. Q3 जैसे हमने देखा एक इवेंटफुल क्वार्टर रहा फॉर द ऑटो और लुब्रिकेंट स्पेस की अगर बात करें तो सर कैसे इस परफॉर्मेंस Q3 परफॉर्मेंस को आप समराइज करेंगे. नमस्ते. तो आपने जैसा बताया कि बहुत अच्छा क्वार्टर रहा हमारे लिए. Q3 ऑल टाइम रिकॉर्ड हमने किया रेवेन्यू में, इबिटा में, वॉल्यूम में. तो ओवरऑल हमारे लिए बहुत रोबस्ट क्वार्टर रहा. Q3 में हमने कई सारे रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड क्रिएट किए अपने हाईएस्ट इबिटा करके, हाईएस्ट रेवेन्यू करके. और सारे चारों तरफ से हमको एक लगा कि एक अच्छा डिमांड कंडीशंस आया है. जहाँ तक हम देख रहे हैं, जैसे ऑटो सेक्टर जो जीएसटी का जो कट आया था, उसके बाद एक ऑटो सेक्टर में जो आइस रिलेटेड व्हीकल है उसमें जो एक जीएसटी कट आया, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी बहुत अच्छी रिकवरी हमने देखी है. तो ओवरऑल एक जीडीपी और एक जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा है. तो ये सारे जो फैक्टर है, ये इससे हमारे को करीब करीब हमने 8% वॉल्यूम ग्रोथ किया Q3 में, जो कि डबल द इंडस्ट्री ग्रोथ है. इंडस्ट्री करीब 3-4% पे ग्रो करती है, हमने 8% वॉल्यूम ग्रोथ किया. ओवरऑल एक मैं कहूँगा चारों तरफ से हमारे लिए रोबस्ट क्वार्टर था Q3. ये जो एक ग्रोथ हम देख रहे हैं वो आप अकॉर्डिंग टू यू लेड मोर बाय वॉल्यूम्स और प्राइस रियलाइजेशन ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, और ये कितना जो ट्रेजेक्टरी है वो कितनी सस्टेनेबल है. तो जैसा कि हमारा 8% वॉल्यूम ग्रोथ था, बट रेवेन्यू ग्रोथ हमारा 11-12% के करीब रहा. तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट मिक्स का इंप्रूवमेंट भी हम देख रहे हैं. हमारा पैसेंजर कार सेगमेंट हुआ, एग्री सेगमेंट हुआ, उसमें बहुत अच्छी हाई डबल डिजिट ग्रोथ आई है ये क्वार्टर में. तो प्राइस एक्शंस भी हमने कुछ लिए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि रुपी थोड़ा वॉलेटाइल था Q3 में, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में. तो हमको कुछ प्राइसिंग एक्शंस लेने पड़े, जो कि हम पास ऑन करते हैं. और उसी के साथ हमारा ग्रॉस मार्जिन भी फिर एक्सपेंड किया, बिकॉज हमने टाइमली प्राइस एक्शन लिए हैं. तो हमारा करीब 60 बेसिस पॉइंट से Q3 में ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंड हुआ है, और इबिटा मार्जिन भी हमारा 67 बेसिस पॉइंट पे एक्सपेंड हुआ है Q2 से.
तो ओवरऑल यस, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों का मिक्सचर है कि हम 12% के करीब रेवेन्यू ग्रोथ किए हैं क्वार्टर में। जी, और मनीष सर, रूरल डिमांड की अगर देखें तो एक साइन ऑफ रिकवरी हम देख रहे हैं अक्रॉस ऑटो सेगमेंट। तो ये जो स्ट्रॉन्गर ट्रैक्शन हम देख रहे हैं इन रूरल मार्केट वर्सेस अर्बन मार्केट, वो आप कैसे देख रहे हैं? अब तो एग्री सेगमेंट हमारा ऑल टाइम हाई पे था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एग्री सेगमेंट से देखने को मिला क्वार्टर 3 में। और इवन 9 मंथ की अगर मैं पूरी बात करूं तो फुल 9 मंथ में भी हमारा एग्री ने काफी डबल डिजिट ग्रोथ किया है। हमारे जो एग्री सेगमेंट में जो टाई-अप्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर्स हुआ, स्वराज हुआ। तो अभी हमने महिंद्रा के साथ जस्ट लास्ट वीक में हमारा रिन्यूअल किया है, जो हमारा ओईएम रिलेशनशिप है उनके साथ अगले 4 साल के लिए। तो ये बहुत अच्छा साइन है, एग्री बहुत अच्छा कर रहा है। और जब एग्री अच्छा करता है तो पूरी इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि वो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का। तो ओवरऑल उसका हम रिपल इफेक्ट देखते हैं। तो हमारे को मोटरसाइकिल ऑयल में या कार ऑयल में, इन सब में भी हमको फिर रूरल सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ दिखती है। तो एक ट्रैक्टर ऑयल हो गया, और उसके रिपल इफेक्ट में जो बाकी सब सेगमेंट्स में भी अच्छी ग्रोथ हमको रूरल के चलते देखने को मिल रही है। जी सर, आउटलुक के फ्रंट पर अभी जानना चाहेंगे यहाँ से एज वी मूव इनटू क्वार्टर 4 एंड FY27 ग्रोथ गाइडेंस सर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और मार्जिन्स आप कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, हम हमेशा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 3 से 4% ग्रो करती है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि गल्फ ऑयल हम 2x to 3x ग्रोथ करना चाहते हैं वॉल्यूम में, जो कि हमने लास्ट 15 साल में डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम CAGR हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 2 to 3x रही है मार्केट से। तो वो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे अभी पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलूंगा, जहाँ पे हमारा मार्केट शेयर अभी भी कम है, और हमारा ज्योग्राफिकली भी हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। B2C हमारा जो बिजनेस है, वहाँ पे हम 90,000 टच पॉइंट के साथ हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करके वहाँ पे मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। और B2B जो हमारा काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर एक्विजिशन कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, और वो हमारे को लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अच्छा एक वॉल्यूम आउटलुक देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट इंडिया में अगले 10 साल तक बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला है, और वहाँ पे हमारे प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। तो हम इंफ्रा सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं कि अगले आने वाले कई सालों में, और स्पेशली करंट क्वार्टर 4 और नेक्स्ट ईयर अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। तो ओवरऑल ऑल राउंड हमारा वॉल्यूम और इंडस्ट्री के प्रति आउटलुक काफी पॉजिटिव है, और हम इंडस्ट्री से 2 to 3x ग्रोथ जो हम बोलते हैं वो हम करना चाहते हैं। मार्जिन साइड में जहां तक सवाल है, थोड़ा रूपी का प्रेशर हमको एक देखना पड़ेगा कि रूपी कब जाके स्टेबल होता है। शुरू के 9 महीने में इस साल रूपी हैज बीन वेरी वॉलेटाइल। 7% के करीब डेप्रिसिएशन हुआ है फ्रॉम अप्रैल। तो ये एक हम देख रहे हैं कि अगर इसमें कहीं स्टेबिलिटी आती है और क्रूड एक स्टेबल जोन में रहता है, तो हमारा जो मार्जिन है वो हम 12 से 14% जो इबिटा मार्जिन की गाइडेंस करते हैं वो हम मेंटेन करेंगे। और हम चाहेंगे कि अगले 2-3 साल में हम उसको नेक्स्ट 14 से 16% की बैंड में भी लेके जाएं। जी सर, और आगे ईवी इंफ्रा और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर समझना चाहेंगे। ईवी अडॉप्शन यहाँ से अगर देखने जाए तो अभी जो प्रोग्रेस है सर, इसके ऊपर मनीष सर एक अपडेट लेना चाहेंगे इन ईवी चार्जिंग इंफ्रा एंड एलाइड सेगमेंट्स। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि लुब्रिकेंट तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेगा, अगले 10, 15, 20 साल तक लुब्रिकेंट ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी। बट हम ये भी मानते हैं कि ईवीज का एडॉप्शन कुछ कुछ सेगमेंट्स में इंक्रीज होगा। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है ईवी को लेके, और हम देख रहे हैं कि आज के दिन जैसे मोटरसाइकिल है वो करीब 5 से 6% पेनिट्रेशन है ईवी का टोटल सेल्स में। कार में करीब 4% है। बहुत सारे न्यू मॉडल्स ईवी में लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जिस्टिंग ओईएम्स भी ईवी में नए नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि ईवी अगले 2-3-4 साल में एक अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। और उसमें हमारा जो प्ले है वो हम चार्जर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हमने एक्वायर करी है। हमारे पास टायरेक्स ट्रांसमिशन हमने एक जहाँ पे 65% इक्विटी अभी कर ली है, वो हमारा एक इसमें फेस है फॉर ईवी बिजनेस। तो वहां से हम करीब करीब आज 7 से 8 ओईएम के साथ में हम इसमें धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम हमारा चार्जर्स वगैरह इस्टेब्लिश करें, उनके साथ में सप्लाई करते हैं। ऑलरेडी हमारे बस सेगमेंट में काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है। बसेस में ईवी काफी अच्छा एडॉप्शन होगा ऐसा हमारा मानना है, और उसमें टायरेक्स जो हमारी कंपनी है सब्सिडियरी, वो फ्रंट रनर है। तो हम देख रहे हैं कि बस डीसी फास्ट चार्जर जो सेगमेंट जो बस में लगता है वहां पे, और अब हमने एसी चार्जर्स भी बनाने चालू कर दिए हैं हमारे टायरेक्स प्लांट में, जहां हम
कई OEMs के साथ में जुड़े हैं उनको चार्जर सप्लाई करने के लिए। तो ओवरऑल हम ईवी को एज एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। एक बहुत अच्छी ग्रोथ आगे अगले 3-4 साल में हम ईवी सेगमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये हमारे टायरेक्स का जो बिजनेस है वो करीब करीब 300 से 400 करोड़ रुपया होगा अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो अगले 3 से 4 साल में। और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की कंपनी भी है ईवी की इलेक्ट्रीफाई ब्रांड के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा कर रही है, उसमें भी नए OEMs रोज जुड़ रहे हैं। जी सर लास्टली ओवरऑल सेक्टोरल ट्रेंड्स और इंडस्ट्री आउटलुक के ऊपर जानना चाहेंगे। द लुब्रिकेंट इंडस्ट्री की सर अगर बात करें क्लोजली लिंक टू ऑटोमोटिव सेल्स, तो यहाँ पर जैसे सर हम देख रहे हैं पैसेंजर व्हीकल्स एक स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, बट टू व्हीलर्स फ्लक्चुएशंस कहीं ना कहीं आप हमें यहाँ से दिखा रहा है, तो कैसे डिमांड शेप अप होती है आप देख रहे हैं अक्रॉस द सेगमेंट? देखिए, टू व्हीलर इंडिया का लार्जेस्ट सेगमेंट है। नंबर के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में करीब करीब 15 से 18 मिलियन एनुअली सेल होती है टू व्हीलर की, तो वो एक ग्रोथ सेगमेंट हमेशा ही रहेगा। और पैसेंजर कार में एक अभी जो जीडीपी का आउटलुक है, जो ओवरऑल पर कैपिटा जीडीपी जो बढ़ रही है, उसमें हम देखेंगे कि व्हीकल पेनिट्रेशन डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। इंडिया में व्हीकल पेनिट्रेशन पर कैपिटा बहुत कम है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, अदर डेवलप्ड नेशंस। तो वो हम अगले 10 साल तक देखेंगे कि व्हीकल का एक बहुत बड़ा बूम इंडिया में आना चाहिए और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री उसके लिए बहुत पॉइज्ड है कि एक वो ग्रोथ मोमेंटम का हमारे को फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हमारे लिए व्हीकल ग्रोथ, और स्पेशली अभी जब जीएसटी का कट आया है आइस व्हीकल्स में, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि आउटलुक और भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाता है। ओवरऑल हम इंडस्ट्री को बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं लुब्रिकेंट की साइड से, और कहीं ना कहीं एक ईवी का एक जो ग्रोथ है वो भी रहेगा, तो हम दोनों तरफ से उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए रेडी हैं। सर मनीष सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर की। मनीष सर थैंक यू फॉर જોઈનિંગ એન્ડ બેસ્ટ વિશેસ ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ। થેન્ક યુ। તો આ રીતે ગલ્ફ ઓઇલ લ્યુબ્રિકન્ટ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી કંપનીના હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર અને CFO મનીષ ગંગવાલ આપણી સાથે જોડાયા અને જે રીતે કંપનીની યોજના છે ગ્રોથ આઉટલુકને લઈને ઈવીને લઈને કઈ રીતે ડેવલપમેન્ટ્સ છે એ બધું આપણને મેનેજમેન્ટે જણાવ્યું। એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ હવે એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ ઓવરઓલ માર્કેટના ફંડામેન્ટલ્સ પર ચર્ચા કરીશું ઇન્વેસ્ટર PMSના હર્ષલ દસાણી સાથે।